Hello dear students, welcome back to my channel Educational Corner. I hope all of you are fine. In my previous video, we have completed the explanation word meanings of lesson Say the Right Thing from our English NCERT book Purvi of Standard 7. As you know that this lesson Say the Right Thing is a play. It is a humorous play which is written by G.C. Thornley, and it is about a young girl named Mary whose mother teaches her how to speak right things at the right time. Her mother also advises her to say kind and pleasing things. So one day when the guests arrived at their home, the young girl forgot all the things taught by her mother. So we are going to start today with back exercise or question answers given in the textbook. Let us discuss. Rectify the false statements given below from scene 2 of the play. An example has been done for you. Share your answers with your classmates and the teacher. So few statements are given here जो कि false statement है और इन false statement को आपने scene 2 part में से answer करना है. And you have to write down the correct statement. You have to change or rectify it. First statement is Mrs. Harding states that they do not like London as it is not the same as Llanfield. So Mrs. Harding फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है कि मिसेस हार्डिन ने ऐसा बोला था कि वो लंदन को लाइक नहीं करती. क्योंकि वो लैंडफील्ड जैसा नहीं है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है. क्या करेक्ट स्टेटमेंट है? रेक्टिफिकेशन है. मिसेस हार्डिंग स्टेट्स दैट दे लाइक लैंडफील्ड वेरी मच इवन दो इट इज़ नॉट सेम एज लंदन. तो ये आपको करके दिया हुआ है. सेकंड से हमें खुद करना है. Mrs. Harding was pleased to know that Mary was familiar with her children. तो Mrs. Harding क्या खुश हुई थी ये जानकर कि मैरी जो है उनके बच्चों को जानती है. तो इसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे? Mrs. Harding was not pleased because she clarified that she did not have any children. उनके बच्चे थे ही नहीं तो उन्होंने क्लैरिफाई किया था इसलिए वो प्लीज नहीं हुई. प्लीज मतलब खुश होना. Mrs. Shaw shared that she liked Mrs. Best as she read a lot of newspaper. Mrs. Shaw ने ये कहा था कि Mrs. Best उन्हें इसलिए पसंद है क्योंकि वो बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़ती हैं. तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है. Mrs. Shaw shared that she liked Mrs. Best. Mrs. Best को वो क्यों लाइक करती थी? एज अ पर्सन लाइक करती थी. वो बहुत ही नाइस थी इसलिए. नॉट बिकॉज शी रेड न्यूज़पेपर. इसलिए नहीं कि वो न्यूज़पेपर पढ़ती थी बल्कि इसलिए कि वो एक बहुत ही नाइस पर्सन थी. मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस शॉ अग्री दैट वेयरिंग अ ब्लू ड्रेस विद रेड कोट इज़ अनफैशनेबल. मिसेस हार्डिंग और मिसेस शॉ जो है वो इस बात से सहमत थी कि ब्लू ड्रेस पहनना और रेड कोट पहनना एक फैशन के खिलाफ है या अनफैशनेबल है, अच्छा नहीं लगता. Mrs. Shaw quickly stated that she liked blue dresses and red coat to avoid offending Mrs. Harding, who mentioned that she often wears a blue dress with a red coat. तो Mrs. Shaw ने ये बोला था कि उनको ब्लू ड्रेस और रेड कोट बहुत अच्छे लगते हैं ताकि वो मिसेस हार्डिंग की तरफ से या मिसेस हार्डिंग को जो है वो ऑफेंड कर सकें और उनको बता सकें कि उन्हें ब्लू ड्रेस और रेड कोट जो वो पहनती हैं वो अच्छी लगती है. मैरी शेयर्स दैट शी फाइंड्स द डॉग आउटसाइड द विंडो क्यूट. ठीक है, मैरी ये बोलती है कि जो बाहर जो डॉग है वो उसे क्यूट लगता है. No, Mary shares that she finds the dog outside dirty and expresses her dislike for it. Later, she discovers that the dog belongs to Mrs. Harding. ठीक है, मैरी ये बोलती है कि डॉग जो है ना वो बहुत ही डर्टी है और बाद में वो उसको डिसलाइक करती है ये भी बताती है और बाद में पता लगता है कि वो जो डॉग है वो मिसेस हार्डिंग का है. Let us think and reflect.
रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट हमें जो दिया ना, ये पढ़ना है और आंसर करना है जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैरी, व्हाट आर you going to talk about? Mrs. Shaw, I don't know, all kinds of changes, all kind of things. One day you will uh, have to go to some of these houses yourself and talk to the people there. Mary, I can talk now. I have been able to talk for a long time. Mrs. Shaw, yes, that's true, you always talk too much, but does anyone want to hear the things that you say? Mary, I can talk very well when I like. I will stay with you today and talk to them when they come. Mrs. Shaw, oh, I don't think so. You can go out for a walk. It will be better if you do that. ओके, तो मैरी ने जब गेस्ट आने वाले थे तो अपनी मदर से यही बोला कि जब वो आएंगे तो आप किस बारे में बात करोगे। उसकी मदर ने, मिसेस शॉ ने यही बोला कि मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करूँगी, और जब तुम कभी बड़ी हो जाओगी, जब एक दिन तुम भी ऐसे बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें भी इन सब के घर जाकर उनसे बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैरी ने बोला कि मैं तो अभी भी बात कर सकती हूँ और बहुत देर के लिए। तो मिसेस शॉ ने उसे समझाया कि तुम बात तो कर सकती हो, पर क्या तुम्हारी वो बातें कोई सुनना चाहता है? तो मैरी ने क्या बोला कि कि मैं आज यहीं रुकूंगी आपके साथ और उनसे जब वो आएंगे तो बात करूंगी। तो मिसेस शॉ ने बोला, मुझे नहीं लगता कि तुम बात कर पाओगी और इससे अच्छा होगा कि तुम वॉक के लिए चली जाओ। तो ये एक्सट्रैक्ट है और ये लेसन में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, नाउ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, उनको मैं आंसर करती हूँ। व्हाट डज मिसेस शॉ इम्प्लाई व्हेन शी सॉ वन डे यू विल हैव टू गो टू सम ऑफ दीज हाउसेज योरसेल्फ एंड टॉक टू द पीपल देयर। तो मिसेस शॉ जो है वो क्या बोलना चाहती थी इस लाइन से, जब उन्होंने ये बोला कि एक दिन तुम्हें भी इन सब के घर जाकर, वहाँ जाकर बात करनी पड़ेगी। शी बिलीव्स मैरी शुड स्टार्ट लर्निंग अबाउट होस्टिंग गेस्ट देन, कि मैरी जो है उसको समझना चाहिए कि गेस्ट जो हैं उनकी कैसे खातिरदारी की जाती है, होस्ट किया जाता है उन्हें। शी थिंक मैरी इज़ रेडी टू विजिट दीज हाउसेज इंडिपेंडेंटली, कि मैरी जो है वो इंडिपेंडेंटली, इन अलग से, अकेले से इन सबके घर जा सकती है। शी वॉन्ट्स मैरी टू डेवलप सोशल स्किल्स इन फ्यूचर, वो मैरी में चाहती थी कि एक सोशल स्किल्स उसके अंदर डेवलप हो फ्यूचर में, ताकि वो सोसाइटी में उठना बैठना बोलना समझ सके। शी होप्स मैरी विल अवॉइड दी सोशल इंटरेक्शन इंटायरली, या फिर वो ये सोचती थी, उनको लगता था कि मैरी जो है वो ये इस तरह की सोशल इंटरेक्शन, जैसे किसी के घर जाना, बात करना, उसको बिल्कुल ही अवॉइड करे। तो इसका करेक्ट आंसर है, शी वॉन्ट्स मैरी टू डेवलप सोशल स्किल्स फॉर द फ्यूचर। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट और सेंटेंस विद करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। ठीक है, मिसेस शॉ एंड मैरी आर डिस्कसिंग हाउ टू हैव अ पोलाइट डिस्कशन और टू गेट टू नो पीपल बेटर। तो मिसेस शॉ और मैरी जो है वो क्या डिस्कस कर रहे थे कि पोलाइट डिस्कशन, किसी से बात करते हैं तो कैसे करते हैं, या फिर लोगों को कैसे जानते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा टू हैव अ पोलाइट कन्वर्सेशन। Why did Mary insist on staying with her mother when guests arrived? मैरी ने क्यों इंसिस्ट किया, फोर्स किया कि मैं मदर के साथ रहूंगी जब गेस्ट आए तो। Mary wanted to prove her ability to engage in conversation and demonstrate that she could talk appropriately when required. तो मैरी को ये लगता था कि वो अपनी जो स्किल्स हैं, कॉन्वर्सेशन की स्किल, अपनी मदर को दिखाए और ये भी बताए कि वो जब कभी बात करनी हो अप्रोप्रिएटली, सही तरीके से, तो वो कर सकती है। मैच द फॉलोइंग कैरेक्टर ट्रेट्स टू द कैरेक्टर्स इन द एक्सट्रैक्ट। ठीक है, मैरी, अब मैरी इसमें से क्या है, ईगर है, जानने की उसको उत्सुकता थी, या वो इनएक्सपीरियंस है, या कॉशियस है। इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मैरी जो है वो ईगर है। क्यों? क्योंकि वो जानना चाहती थी कि मदर जो है वो किस बारे में बात करेंगे। तो मैरी के लिए क्या आएगा, ईगर, और मिसेस शॉ के लिए कॉशियस। कि मिसेस शॉ जो थी वो बहुत कॉशियस थी, वो ध्यान रखती थी हर चीज़ का कि मैरी जो है वो हर किसी से तरीके से पोलाइटली बात करे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है मैरी।
I saw Mrs. Cotter in this afternoon. I met her in the street. No one sees her in the morning because she always stays in bed then. And she is always asking the doctor to go to see her. I can't understand women stay in the bed in the morning and why must she always ask for the doctor. I have never been to a doctor in my life. Mrs. Harding, I stay in the bed in the morning myself. So मेरी मिसेस पॉटर के बारे में यहाँ बात करती है कि मैंने उनको आफ्टरनून में देखा था और मैं उन्हें जो है वो स्ट्रीट में मिली थी, पर मॉर्निंग में उनको कभी नहीं देखा क्योंकि वो बेड में ही स्टे करना पसंद करती हैं। और हमेशा डॉक्टर से जो है वो हमेशा यही बोलती हैं कि डॉक्टर उनको आकर देखें। और वो ये बताती हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे कैसे वुमेन कोई भी बेड में रह सकती है मॉर्निंग में, क्योंकि मैं आज तक, मैरी ने बोला कि मैं आज तक अब डॉक्टर से एक बारी भी मिलने या डॉक्टर के पास एक बारी भी जो है वो नहीं गई। तो मिसेस हार्डिंग ने इस बात पे बोला कि मैं भी बेड पर मॉर्निंग में बेड पर ही रहती हूँ। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस सुटेबली। मैरी कुड स्पॉट मिसेस कॉटर इन द स्ट्रीट बिकॉज मैरी जो है मैरी ने मिसेस कॉटर को कैसे स्ट्रीट में देखा होगा। शी ऑफन गोज आउट ड्यूरिंग द डे, क्योंकि वो बाहर जो है वो जाती होगी सुबह के टाइम में, इसलिए उसने मिसेस कॉटर को स्ट्रीट में कभी देखा हो। What does Mary's comment about Mrs. Cotter staying in bed and calling the doctor suggest about her understanding? तो मैरी ने जब ये कमेंट किया कि मिसेस कॉटर बेड में रहती हैं और डॉक्टर को बुलाती रहती हैं, तो इससे क्या पता लगता है मैरी को क्या समझ आया? शी इज़ वरीड अबाउट वाई मिसेस कॉटर स्टेज इन बेड ऑल द मॉर्निंग, कि मिसेस कॉटर जो है वो हमेशा बेड पे क्यों रहती है मॉर्निंग में, इस चीज़ से वो परेशान थी, उनके लिए चिंतित थी। या शी इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड वाई पीपल नीड मेडिकल हेल्प, उसको ये नहीं समझ आ रहा था कि लोगों को मेडिकल हेल्प क्यों चाहिए होती। या फिर शी थिंक्स मिसेस कॉटर इज स्केयर्ड एंड लोनली फॉर स्टेइंग इन बेड, या उसे ये लगता था कि मिसेस कॉटर जो है वो डरती हैं और उनको डर लगता है और वो अकेलापन फील करती हैं बेड पे रहने से। शी बिलीव मिसेस कॉटर इज राइट टू रेस्ट एंड टेक केयर ऑफ हरसेल्फ, या फिर उसको ये समझ आ गया कि मिसेस कॉटर जो है वो रेस्ट करना चाहती हैं और अपना ध्यान रखना चाहती हैं। तो करेक्ट आंसर आएगा शी इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड वाई पीपल नीड मेडिकल हेल्प, क्योंकि वो खुद से कभी डॉक्टर पे नहीं गई थी, तो उसको यही था कि लोगों को क्या ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर पर जाने की या किसी भी तरह की मेडिकल हेल्प लेने की। हाउ कैन वी से दैट मैरी इंजॉयड गुड हेल्थ? मैरी गुड हेल्थ इंजॉय करती थी, हम कैसे बोल सकते हैं? तो उसने बताया यहाँ पर कि मैरी इंजॉयड गुड हेल्थ बिकॉज शी मेंशन्स दैट शी हैज़ नेवर नीडेड टू विजिट अ डॉक्टर इन हर लाइफ सजेस्टिंग हर रोबूस्ट। अपनी हेल्थ के बारे में बताते हुए, अपनी अच्छी हेल्थ के बारे में बताते हुए उसने यही बोला कि मुझे कभी लाइफ टाइम में डॉक्टर की अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी। Identify whether the following statement is true or false. Mary might have unintentionally offended Mrs. Harding. ठीक है, तो मैरी ने अनइंटेंशनली ऑफेंड कर दिया किसको? मिसेस हार्डिंग। तो मैरी ने क्या इंटेंशनली, अनइंटेंशनली मतलब जानबूझकर नहीं, उसने गलती से ऑफेंड कर दिया, मतलब कि उनको जो है हर्ट किया, मिसेस हार्डिंग को जानबूझकर नहीं गलती से ही हर्ट कर दिया। तो दिस इज ट्रू। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डज मैरीज कमेंट अबाउट मिस्टर बेस्ट रूटीन एंड प्रोफेशन रिवील अबाउट हर व्यू पॉइंट ऑन बैंकर्स एंड देयर वे ऑफ लाइफ? तो मैरी ने जो कमेंट किया मिस्टर बेस्ट के रूटीन पर कि वो जो है रहते यहाँ हैं, जॉब लंदन में करते हैं, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, कम्यूट करते हैं और न्यूज़पेपर रीड करते हैं, तो इससे क्या पता लगता है एक तो उनके रूटीन और प्रोफेशन के बारे में जो उसने बात बोली, इससे उसके व्यू पॉइंट मतलब क्या वो सोचती थी उनके बारे में क्या पता लगता है। Mary's comment show that she finds the routine of bankers dull and lifeless, कि बैंकर्स का जो रूटीन है वो बहुत ही डल और लाइफलेस है। शी क्रिटिसाइज देयर डेली train commutes and lack of creativity in reading newspaper only, implying that bankers are unthinking and overly focused on work, कि बैंकर्स जो हैं उनकी लाइफ बहुत डल और लाइफलेस होती है। और वो क्रिटिसाइज़ कर रही थी इस बात को लेके कि जो वो सिर्फ ट्रैवलिंग करते हैं और सिर्फ न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं और इसके अलावा वो
से अपने काम को लेकर जो है वो फोकस रहते हैं और कुछ थिंकिंग जो है उनकी क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कैन बी इन्फर अबाउट मैरीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोलाइट कॉन्वर्सेशन बेस्ड ऑन हर इंटरैक्शन विद द गेस्ट। ठीक है, हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि मैरी जो है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी ऑफ पोलाइट कॉन्वर्सेशन ऑफ हर इंटरैक्शन विद गेस्ट। मैरीज इंटरैक्शन शो दैट शी डज नॉट अंडरस्टैंड पोलाइट कन्वर्सेशन वेल। उसको अभी ये नहीं पता था पोलाइट कन्वर्सेशन होती क्या और कैसे होती है, उसको इस बारे में नहीं समझा। She often makes inappropriate remarks that embarrass the guest, despite her mother's advice to say kind and pleasing things. ठीक है, उसकी मदर ने उसको इतनी तरीके से सिखाया, समझाया, एडवाइस करी कि काइंड और प्लीजिंग थिंग्स ही बोलनी है, पर उसके बावजूद भी उसने कुछ भी बोल दिया और गेस्ट के सामने शर्मिंदा हो गई उसकी मदर भी और गेस्ट भी। ठीक है, what do you think the repeated stage direction no one speaks indicates about the atmosphere in the room when Mary speaks? ठीक है, बार बार जो ये प्ले हो रहा है उसमें रिपीटेड एक चीज़ बोली जा रही है, क्या कि नो वन स्पीक्स, कि कोई नहीं बोल रहा उस एटमॉस्फेयर में। क्यों? क्योंकि जब मैरी बोल रही थी तो सब जो है उसके सामने कोई भी नहीं बोल रहा। ठीक है, तो ये बहुत ही एक साइलेंस शो करता है। द स्टेज direction no one speaks indicates awkward silence and discomfort in the room. It suggests that Mary's comment make the guest uneasy and unsure of how to respond. Mary's के जो कमेंट थे, जो वो चीज़ें बोल रही थी, उससे गेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनईजी हो गए, उनको डिस्कम्फर्ट हुआ, वो कंफर्टेबल नहीं थे और इसीलिए उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो उसको किस तरह से आगे रिस्पॉन्ड बैक करें या उसको किस तरह से आंसर बैक करें। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज मैरीज एटीट्यूड टुवर्ड्स द गेस्ट चेंज थ्रू आउट द प्ले। मैरी का एटीट्यूड गेस्ट के सामने जो है वो थ्रू आउट द प्ले, पूरे प्ले में किस तरह से एटीट्यूड उसका पूरे प्ले में किस तरह से चेंज हुआ। At first, Mary is eager to talk and impress the guest. However, as the play progresses, her blunders make her more embarrassed and hesitant, especially when her remarks offended the guest. तो पहले तो मैरी बहुत ही ज़्यादा ईगर थी, एक्साइटेड थी कि वो गेस्ट से बात करेगी, अपनी मदर के साथ ही रुकेगी और उनको इम्प्रेस करेगी। बट जैसे जैसे प्ले आगे बढ़ता रहा, उसने अपनी ब्लंडर्स की वजह से जो मिस्टेक्स करी, जो चीज़ें उसने बोली, उसकी वजह से उसने सबको शर्मिंदा कर दिया और स्पेशली जब उसने रिमार्क्स दिए जो कि गेस्ट को कहीं ना कहीं पर हर्ट कर। Question number 5. What do Mrs. Harding's and Mrs. Lee responses to Mary's blunders during their visit reveal about their character? तो मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली ने मैरी की जो ब्लंडर, जो मिस्टेक्स हुई थी, तो इनके जो जवाब थे उनसे क्या कैरेक्टर पता लगता है इनका। Mrs. Harding and Mrs. Lee respond to Mary with restraint and politeness even when she makes inappropriate remarks. जबकि मैरी ने कुछ भी वो बोलती रही और इनअप्रोप्रिएट रिमार्क्स दिए जो कि उनसे रिलेटेड थे या नहीं थे, बट मिसेस हार्डिंग और ली जो है वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पोलाइटनेस से उन्होंने इसको रिस्पॉन्स दिया। दिस रिवील देयर पेशेंस एंड एबिलिटी टू मेंटेन कंपोजर इन एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन। ठीक है, तो मतलब वो एक उनका पेशेंस लेवल जो है दिखाती है और एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में किस तरह से अपना जो है अपना कामनेस को मेंटेन रखना है वो दिखाता है। In what way does the play show the importance of knowing how to engage in polite conversation? The play highlights that the knowing how to engage in polite conversation is important to make a good impression and build relationship. तो प्ले हमें यही हाईलाइट करता है, बताता है कि किस तरह से आपको गेस्ट के साथ पोलाइट कॉन्वर्सेशन रखनी चाहिए ताकि आप अपना एक अच्छा इंप्रेशन उनके साथ बना सके और एक अपना पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन कर सके। Mary's mistakes show how tactless words can create awkwardness and distance between people. मैरी की जो मिस्टेक थी या जो ब्लंडर उसने करे थे बोलने की वजह से, उससे जो है ये पता लगता है कि ऑकवर्डनेस
जो है वो, और किस तरह की एम्बैरेसमेंट फील होती है और किस तरह से एक आपका दूसरे इंसान के साथ डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। Let us learn, study the following words taken from the text: humorous, hilarious, coming, beautiful. अब यहाँ पर कुछ words दिए हैं. The given words are made by adding words ending with OUS. देखो humorous में OUS है, hilarious में LY है, coming में ING है और beautiful में FU है. To the root words humor, hilarious, come and beauty. Such words ending are called suffix. इनको हम बोलते हैं suffix. जो end में लगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? suffix. Note the spelling variant when the word ends in e as in come and y as in beauty. ठीक है, तो स्पेलिंग जो है वो चेंज हो जाती है जब कोई वर्ड ई पे होता है. ठीक है, जैसे अगर ई है तो ई के साथ आई लगा, यहाँ पे हमने इंग लगा दिया तो वो आई ई जो है वो हट जाएगा. ठीक है, तो वो यहाँ पे ING लग गया तो ई जो है वो हट जाएगा. और y ब्यूटी में y है तो y चेंज होके I बन जाएगा. ठीक है, नाउ डिवाइड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट एज रूट वर्ड्स एंड सफिक्स एंड चेक द आंसर विद द टीचर. अब आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, आपको क्या करना है? रूट वर्ड्स अलग करने हैं, सफिक्स अलग करने हैं. जैसे यहाँ दिया है ग्लैडली, तो ग्लैड प्लस LY. ठीक है, तो रूट वर्ड हो जाएगा ग्लैड और LY हो जाएगा सफिक्स. बैंकर, बैंक रूट वर्ड और ER सफिक्स. गाइडेंस तो गाइड और ANCENS हो जाएगा सफिक्स. क्वाइटली, क्वाइट रूट वर्ड और LY सफिक्स. वॉकिंग, वॉक रूट वर्ड और ING सफिक्स. ठीक है, study the words in column 1, match the suffix in column 2 with their meanings or purpose in column 3. Write a few examples for each in column 4. Share your answers with the teacher. ठीक है, अब यहाँ column 1 में हमें कुछ words दिए हैं. ठीक है, उससे रिलेटेड वर्ड्स ही हमें जो है यहाँ पर ऐड कर यहाँ पे नया वर्ड बनाना है. और इसके अलावा हमें यहाँ कॉलम 3 में दिया हुआ है कि हमें किस में हम उसे किस में चेंज कर रहे हैं. क्या हम उसका प्लूरल बना रहे हैं या फिर हम उसको पास्ट टेंस में चेंज कर रहे हैं या नाउन में कर रहे हैं, तो वो हम जैसे करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, फर्स्ट वर्ड देखो बायोलॉजी, यहाँ सब्जेक्ट है बायोलॉजी. अब हमें यहाँ पे एक सब्जेक्ट ही बनाना है, सब्जेक्ट का नाम. तो यहाँ ऑलरेडी दिया है सोशियोलॉजी और इन्होंने लॉजी को कहाँ करा है? अ स्टडी ऑफ. ठीक है, बायोलॉजी भी स्टडी है, सोशियोलॉजी भी एक स्टडी है. Biology is a study of living organism, whereas sociology is a study of human society, about human behavior and all. Okay, so both are studied. Then tolerance. Tolerance को we are changing it to change to a noun. ठीक है, so tolerance जैसा word guidance. Then stopped. कॉलम 1 में दिया है ईडी. ईडी को हम ईडी किस में चेंज हो रहा है? चेंज टू पास्ट टेंस. ईडी वहीं लगता है जहाँ पास्ट टेंस होता है, तो वॉक्ड. देन बैकवर्ड वर्ड चेंज करके यहाँ पे हमें बनाना है इन अ सर्टन डायरेक्शन. फॉरवर्ड. करेजियस, करेजियस OUS यहाँ पर सफिक्स है. चेंज टू एडजेक्टिव joyous. Quietly LY change to adverb. Gladly. Toughest EST क्या है? Change to superlative. Adjective है, superlative है. Smallest. Tomatoes ES यहाँ पर suffix है. Change to plural. Plural में change कर रहे हैं, S या ES लगाते हैं तो वो plural में change हो जाते हैं. ये जगह potatoes. ठीक है, इस तरीके से आपने इसे कंप्लीट करना. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट बाय एडिंग सूटेबल सफिक्स. अब यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं ब्रैकेट में, यहाँ आपने सफिक्स ऐड करने हैं. ठीक है, जैसे LY हो गया, ING हो गया, ये ऐसे वाले आपने सफिक्स अभी जो सीखे हैं वो ऐड करने हैं. टू कम्युनिकेट इफेक्टिव, इफेक्टिव का क्या हो जाएगा? इफेक्टिवली LY लग जाएगा. चूज योर वर्ड्स एंड टॉपिक्स वाइज
वाइज का हो जाएगा वाइसली। अवॉइड डैश थिंग्स यू डोंट नो मच अबाउट, तो डिस्कस का हो जाएगा डिस्कसिंग ing, or that could upset someone. Remember to be dash towards others. Respect का क्या हो जाएगा respectful, including yourself and express your dash, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा appreciate का appreciation. Finally, always be dash response by replying promptly to communicate responsive. सो दिस वे यू हैव टू कंप्लीट। यहाँ पे सफिक्स ऐड करें रिस्पॉन्सिव में, ई हट गया देखो और आ गया आई वी ई। रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। बट डज एनी वन वॉन्ट टू हेयर द थिंग्स दैट यू से। यहाँ पे हाईलाइट क्या है, से। आई कांट टेल यू एवरीथिंग, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। इज देयर अ डिफरेंस इन द मीनिंग ऑफ से एंड टेल। यस, डिफरेंस है से और टेल में। यस, डिफरेंस है। से क्या करता है, फोकस करता है ऑन द मैसेज एंड डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर अ लिसनर, ठीक है। से जो है वो मैसेज जो मैसेज पे फोकस करता है और ऐसा ज़रूरी नहीं कि लिसनर चाहिए, ठीक है, सुनने वाला चाहिए। टेल जो है वो फोकस करता है जिसको मैसेज मिलता है, रिसीव जो मैसेज रिसीव करता है, और जिसको हम टेल मतलब जिसको हम बता रहे हैं उसमें क्या है कि हमें एक लिसनर ज़रूर चाहिए। Fill in the blanks with suitable words from the set of words given in the box below. Make changes in the verb form tense if necessary. अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स हमें दिए हैं जो कुछ सिमिलर हैं। इन वर्ड्स की हेल्प से हमें जो फिलअप्स हैं वो फिल करना है। फेच का मतलब है गो समवेयर टू गेट समथिंग एंड ब्रिंग इट बैक, ठीक है, कहीं जाकर कुछ लाना और उसको वापस लेकर आना। ब्रिंग अपने साथ कुछ लेना, टू टेक समथिंग विद यू टू द प्लेस यू आर गोइंग। सी का मतलब होता है कि हम किसी व्यू को देखते हैं, समथिंग दैट वी व्यू वेदर और नॉट वी पे अटेंशन। हम चाहे हम व्यू देख रहे हैं, हम कहीं भी देख सकते हैं, उसके लिए ऐसा नहीं है कि एक तरफ से ही देखना है। लुक है फोकस योर आइज, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोकस करना बाय पेइंग सर्टेन अटेंशन, ठीक है। लिव परमानेंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जहाँ हमेशा हम रहते हैं, जहाँ पर उसको हम लिव कहते हैं। स्टे टेम्परेरी, जहाँ हम कहीं रहते हैं एज अ गेस्ट या विजिटर, जैसे हम कहीं वेकेशन में बाहर जाते हैं तो हम जहाँ रहते हैं वो हमारा स्टे होता है, ठीक है। और जब हम लिव की बात करें तो जहाँ हम रहते हैं अपने घर में उसको हम बोलते हैं लिव। स्टडी स्पेंड टाइम learning something as a part of formal education, learn gain knowledge और skill through study और experience, ठीक है। स्टडी होता है जब हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं लर्निंग में, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ फॉर्मल हमारी एजुकेशन हमारी इंपॉर्टेंट है उसके लिए। लर्न का होता है जब हम किसी नॉलेज या स्किल को गैदर कर रहे हैं। स्पीक थॉट्स को हम जब एक्सप्रेस करते हैं फॉर्मल सिचुएशन में उसको स्पीक बोलते हैं। टॉक होता है इनफॉर्मली जब हम किसी से बात करते हैं, ठीक है, हम किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो हम इनफॉर्मल होकर बात करेंगे, वो हमारा टॉक होता है, ठीक है। और स्पीक होगा जब हम फॉर्मल सिचुएशन में बात करते हैं, अपने आइडियाज़ और थॉट्स एक्सचेंज करते हैं, इसे बोलते हैं। हेयर परसीव साउंड अनइंटेंशनली थ्रू ईयर्स, मतलब हम अपने कानों से जब कुछ भी सुन लेते हैं उसको ईयर बोलते हैं। लिसन मतलब जब हम पे अटेंशन ध्यान से सुनते हैं किसी साउंड को, उसे हम लिसन कहते हैं। अब यहाँ पर जो हमें फिलअप्स दिए हैं इनको हमें उन्हीं से भरना है। आई डैश एट द फोटो बट आई डिडंट एनी वन फेमिलियर। देखो, आई लुक्ड एट द फोटो बट आई डिडंट सी एनी वन फेमिलियर। आई वुड बेटर गो एंड dash my mother from station and then her home. Better go and fetch my mother from the station and then bring her home. I need to dash for my mathematics exam this weekend. Study. So I hope to learn new concepts along the way. I can hear the music from my neighbor's house, but I need to listen to it carefully to understand the lyrics. Okay. Could I speak to Mrs. Kalpana, who is going to talk to us about gardening, said Ruth. I live in a small town, but I often stay with my relatives in the city.
So I hope the difference is clear to you with the help of these sentences. Read the following sentences from the text and underline the verbs. अब आपको इसमें verbs देखने. They lived in London before. I met her in a shop and asked her to come. As you know, the verbs you have underlined are in simple past. अब verbs क्या है? ठीक है, lived है, met है, ये क्या है? ये verbs है. ठीक है. रीड द फॉलोइंग. जैसे हम पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं तो वो पास्ट टेंस में दी है. लिव्ड हो गया, ठीक है, मेट हो गया, यहाँ पर ये है सिंपल वर्ब्स. आस्क्ड हो गया. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द वर्ब. शी हैज बीन स्टेइंग विद देम फॉर अ व्हाइल. ठीक है. अब इस लाइन में क्या वर्ब होगा? स्टेइंग. ठीक है, स्टे करना ये वर्ब है, स्टेइंग. The verb you have underlined is in present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense क्या होता है? Let us see. We use present perfect continuous has or has plus has या फिर have यूज होता है. साथ में been होता है प्लस verb और ing. ठीक है, has और have plus been plus verb plus ing. ठीक है, जहाँ भी यूज होगा होगा present perfect continuous. The duration of an action has that started in past and continues up to the present moment. ऐसा एक्शन जो स्टार्ट हो चुका है पर अभी तक चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, तो उसको हम कॉन्टिन्यूस बोलते हैं. ठीक है. Mrs. Shaw has been preparing the room since the morning for Mrs. Harding and Mrs. Lee visit. ठीक है, तो Mrs. Shaw, अगर हम किसी एक की बात कर रहे हैं, अगर हमारा यहाँ पे जो सब्जेक्ट है या जो भी हमारा जो हमारा नाउन है या प्रोनाउन है, अगर वो एक है, सिंगल है, सिंगुलर है, तो हम हैज़ यूज़ करेंगे. और अगर ज़्यादा है तो हैव यूज़ करेंगे. और साथ में यूज़ करेंगे बीन और साथ में वर्ब आईएनजी. ठीक है. अब जैसे यहाँ मिसेस शॉ एक ही है तो हैज़ लगा हुआ है और हैज़ बीन प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर के साथ प्रिपेयरिंग. एन एक्शन दैट was ongoing in the recent past with its result evident now. The focus is on ongoing activity rather than its completion. तो अभी जो एक्टिविटी चल रही है फोकस उस पर रहता है इसमें, ना कि उसकी कंप्लीशन पे कि वो कंप्लीट कब होगी. ठीक है. मिसेस शॉ हैज़ बीन क्लीनिंग द रूम सिंस द मॉर्निंग. द रूम लुक्स स्पॉटलेस नाउ. तो हैज़ बीन क्लीनिंग यहाँ पर है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. हैज़ जो है वो मिसेस शॉ के साथ हैज़ लगा है, बीन लगेगा और क्लीन वर्ब है आईएनजी लगेगा. ठीक है. स्टूडेंट्स हैव बीन प्रैक्टिसिंग अ प्ले अबाउट द स्टोरी. ठीक है, स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे हैं तो हैव लगेगा. स्टूडेंट्स हैव बीन प्रैक्टिसिंग. ठीक है, दे आर रिहर्स्ड एंड रेडी. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद the verbs here using present continuous और present perfect continuous. ठीक है, present continuous होगा तो भी वो तो लगेगा has, have, ing. और अगर present perfect continuous होगा तो has या have, been plus ing in the verb. ठीक है. The students organize a play and setting up the students are organizing. ठीक है, बहुत सारे हैं तो are लगेगा. Organize तो हो जाएगा organize. ठीक है. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी इज एम आर ing. प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, हैव, बीन और साथ में ing. दे प्रिपेयर फॉर वीक्स टू मेक एवरीथिंग परफेक्ट. दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर वीक्स. द परफॉर्मर्स रिहर्स एवरी डे, हैव बीन रिहर्सिंग एवरी डे एंड देयर एक्साइटमेंट is growing. Sound in charge test is testing the microphones to check the sound quality. Everyone is working hard and now the place with energy and is buzzing. Okay, so with this you have I hope you have completed this. Read the explanation about kind of sentences given in the table. Kind of sentences आपने पहले भी पढ़े हुए हैं कि there are 4 kind. एक तो होता है declarative हमारा, declarative sentences, interrogative, exclamatory और imperative. Declarative sentences वो होते हैं जो हमें कोई information के बारे में बताते हैं. ठीक है, ये end करते हैं full stop से. ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल दिया है.
ऑलवेज समथिंग टू से, तो इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। और हमें हमेशा कुछ ना कुछ कन्वे करेंगे, कुछ बताएंगे। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव मीन्स टू इंटेरोगेट मीन्स टू क्वेश्चन, ठीक है। लाइक यू नो पुलिस स्टेशन में जो है वो अगर कोई चोर या क्रिमिनल कोई भी पकड़ा जाता है तो उससे इंटेरोगेशन की जाती है। तो इंटेरोगेट का मतलब ही ये होता है टू क्वेश्चन। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है इसके अंदर। व्हाट शैल आई डू व्हेन दे वांट टू। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस को बताते हैं, ठीक है। अच्छी फीलिंग्स होती हैं जो हमारी, उनके बारे में, या बुरी फीलिंग्स के बारे में, सबके बारे में बताते हैं, ठीक है। इट एंड्स विद अ एक्सक्लेमेशन मार्क, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी है तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड करते हैं। व्हाट ब्यूटीफुल चिल्ड्रन यू हैव मिसेस आर्डिंग, सी एक्सक्लेमेशन मार्क है लास्ट में, एक्सक्लेमेशन मार्क। यहाँ डिक्लेरेटिव में हमारे पास क्या लगता है, फुल स्टॉप। देन इंटेरोगेटिव में हमारे पास लगता है क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड लास्ट है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव होता है जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, कोई किसी तरह का कमांड देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं। इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, ठीक है। पुट दैट कोट अवे इन योर बेडरूम, ठीक है। तो हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो या ठीक है, तो ये क्या है, जब किसी को ऑर्डर देते हो और कमांड देते हो, बी क्वाइट, रिक्वेस्ट करते हो, क्लोज दैट विंडो, प्लीज़ क्लोज दैट विंडो, तो ये सब क्या है, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंसेज एंड पंचुएट देम अप्रोप्रिएटली, ठीक है। अब ये काइंड ऑफ सेंटेंसेज हमें आइडेंटिफाई करने हैं कौन से हैं, और साथ में इसको पंचुएट भी करके लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस है द मीटिंग स्टार्ट्स एट 10 AM इन द कॉन्फ्रेंस रूम। तो सिंपल सेंटेंस है ये, बिल्कुल ही हमें कुछ बता रहा है, क्या कि मीटिंग के बारे में बता रहा है। तो हम सिंपल लिखेंगे द मीटिंग स्टार्ट्स एट 10 AM, लास्ट में लगेगा फुल स्टॉप, टी कैपिटल आएगा, टी कैपिटल, लास्ट में आएगा फुल स्टॉप, एंड दिस इज अ डिक्लेरेटिव। व्हाट एन एक्साइटिंग एडवेंचर इट वाज, ठीक है। अब लास्ट में लगाएंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क और डब्ल्यू आएगा कैपिटल, और जब एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा तो दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हाउ डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम सो क्विकली, अब ये हाउ से शुरू है, ये दिस इज अ क्वेश्चन, तो एच कैपिटल और यहाँ पे क्वेश्चन लगा और ये लगा इंटेरोगेटिव। व्हाट इज द वेदर फोरकास्ट टुडे, अगेन ये क्वेश्चन है, डब्ल्यू कैपिटल आएगा और क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में, और इसे हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेनबो, ठीक है। हाउ ब्यूटीफुल में एच कैपिटल, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्लीन अप योर रूम बिफोर डिनर, तो सी कैपिटल। अब यहाँ पर आप किसी को ऑर्डर कर रहे हो कि अपना रूम क्लियर जो है वो क्लीन करो डिनर से पहले, तो ये इम्पेरेटिव। द चिल्ड्रन आर प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी फॉर देयर, तो द चिल्ड्रन में टी कैपिटल आ जाएगा, आर प्लानिंग फॉर सरप्राइज पार्टी फॉर देयर मॉम। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, हमें कुछ बता रहा है, तो ये है डिक्लेरेटिव। टर्न ऑफ द म्यूजिक, ठीक है, ये है इम्पेरेटिव, हम किसी को कमांड दे रहे हैं कि टर्न ऑफ द म्यूजिक, टी कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप, दिस इज अ इम्पेरेटिव सेंटेंस। So with this, all the exercises are complete. I hope you have understood all the questions properly. If you are liking my videos, please do subscribe my channel and share your valuable comments with me. I'll see you soon in my next video now. Up till then, take good care of yourself. Goodbye.